Namaskar children, today we are going to revise the chapter 1 of history, that was Indus Valley Civilization. It is also called Harappan Civilization and the name was Bricks, Beads and Bones. Earlier when we have studied a chapter, we came to know about so many things about Harappan Civilization. So many things were known about the artifacts, beads, stones and so on. So today we are going to revise all about that, and Indus Valley Civilization that is also developed in 3300 to 1300 BC between, and it was in South Asia. It is also called Harappan Civilization. So objects, what we found there, the objects were seals, beads, weights, stones and so on. And it is divided into the two parts. You can see here, early and late Harappan. So wide range of plants and animal products which they were eating. वो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स थे, उनको वो ईट कर रहे थे, खा रहे थे। और इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि they were vegetarian as well as they were non-vegetarian also. So in such a manner we will be able to know about the procedure, how they were fulfilling their basic requirements and how they were using the material to eat. Now coming to the next thing, they were doing agriculture also, so agriculture technologies they were using. We found here terracotta models in which they were having the particular postures of particular animals. We found oxen there, the oxen को use कर रहे थे plowing के लिए. Then irrigation was required. It was the reason it was dry, so irrigation was required. Artifacts, अलग अलग आर्टिफैक्ट्स को यूज कर रहे थे जो कि उनके लिए जरूरी थे. लाइक दे वर यूजिंग द पॉट्स आल्सो, दे वर यूजिंग द ऑर्नामेंट्स आल्सो एंड सम पर्टिकुलर थिंग्स दे वर यूजिंग फॉर देयर ओन इंटरेस्ट. वन वाज saddle corn means it was the particular technology by which they can grind the grain को, सीरियल को, गेहूं को पीसने के लिए they were using saddle corn. So in such a manner they were fulfilling their basic requirements. एक बार फिर देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि साउथ एशिया में सिचुएटेड है, इसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं. बीड्स, सील्स, वेट, स्टोन्स, ये वहां पे मिले ऑब्जेक्ट्स. इसे हम अर्ली और लेट हड़प्पन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. एंड हियर वी कैन फाइंड वाइड रेंज ऑफ प्लांट एंड एनिमल जो खा रहे थे लोग. Agriculture technologies were used, terracotta models for plowing and irrigation was used there. And apart of that, they were using so many artifacts, and between that it was saddle corn. This question has come in exam in previous years. कि what was saddle corn? जो हमारे यहाँ आटा चक्की होती है, वही वहाँ पे saddle corn कहलाया, जो कि गेहूं को पीसने का वर्क कर रहा था. Now coming to the next thing कि इस particular civilization का most important site क्या थी? मोहनजोदारो. You have seen one film also which came of Hrithik Roshan earlier when I taught the chapter. I sent the link of the particular clip also कि वो कैसे कपड़े पहन रहे थे, कैसे रह रहे थे, रूल कैसे कर रहे थे, about all. It was मोहनजोदारो and it was divided into the two parts, citadel and the lower town. दो पार्ट में डिवाइड था, citadel और lower town. And the drainage system was one of the best drainage system at this time, and in the starting onwards it was an example, it was the ideal for the other systems. उस समय के अनुसार जो सिस्टम ड्रेनेज का उन्होंने डेवलप किया वो आगे आने वाली जनरेशन के लिए एक आइडियल बना. Then domestic agriculture they were doing for the use. And coming to the great bath, अभी हमारे स्विमिंग पूल्स होते हैं, हम जाते हैं और we have fun there. But at that time, it was the first time when there was a public bath, जो आप स्विमिंग पूल का ही पार्ट कह सकते हैं. The great bath, the earliest public water tank and of the ancient world. पहला वाटर टैंक था जो पब्लिकली सबके लिए बना किस समय में? इंडस वैली सिविलाइजेशन. Then coming to the burials. Burials क्या है? Burials that they were जब डेड बॉडी को हम मिट्टी में गड्ढे खोद के दफनाते हैं, then we were
कोटिंग द आर्टिकल्स विद द थिंग्स, आर्टिकल्स होते हैं लाइक ऑब्जेक्ट कोई भी या खाने का सामान या कुछ मिट्टी के पॉट्स ऑर्नामेंट्स, सो उससे उस पर्टिकुलर डेड बॉडी का सोशल स्टेटस पता चलता है कि वो किस स्टेटस का है, क्या वो रिच है या पुअर है, क्योंकि जो भी आर्टिफैक्ट्स आप वहाँ पे बुरियाल्स में दफना रहे हैं वो उस पर्सन का सोशल स्टेटस बताता है। एंड नाउ कमिंग टू द प्रीस्ट किंग, कुछ लोगों का कहना है जिनने वहाँ पे सर्च किया कि रिसर्च किया कि जो प्रीस्ट किंग वहाँ हुआ करते थे राजा, जो एक म्यूचुअल कंसेंट से आपस की सहमति से शासन कर रहे थे, और कुछ कह रहे हैं कि वहाँ पे कोई रूलर था ही नहीं। सो देयर वर टू व्यूज कि वन से रूलर वर देयर, प्रीस्ट किंग था, और कुछ कह रहे हैं कि रूलर था ही नहीं। सो इट वाज लाइक दैट। नाउ कमिंग टू इसका एंड कैसे हुआ सिविलाइजेशन का, कुछ ऐसे फैक्टर थे। पहला क्लाइमेटिक चेंज, क्लाइमेटिक चेंज, जो क्लाइमेट उस समय सूटेबल थी धीरे धीरे वो बदलती गई, और वहां पे उस क्लाइमेटिक चेंज से जो सिविलाइजेशन था वो धीरे धीरे खत्म होता गया। द सेकेंड वन, डिफॉरेस्टेशन, जब हम जंगल काट देते हैं तो वहां पे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट होता है। इस वजह से इसके एंड का एक कारण बना फ्लड्स, एक्सेसिव फ्लड्स, बहुत फ्लड्स आए, उन फ्लड से वहां पे लोगों का सर्वाइवल टफ हो गया। देन ओवर यूज ऑफ लैंडस्केप, लैंडस्केप का जब वो ओवर यूज करने लगे तो वहां पे लैंड जो थी उनके सर्वाइवल के लिए कम रही। देन ड्राइंग रिवर्स, और जो नदियां सूखी, उन नदियों के सूखने से जो उनका इरिगेशन पार्ट था वो इन्फ्लुएंस हुआ, उस इरिगेशन पार्ट के इन्फ्लुएंस होने से दे वर नॉट एबल टू इरिगेट देयर, वो वहां पे इरिगेशन नहीं कर पाए। तो क्या क्या मेन कारण रहे थे आपके? क्लाइमेटिक चेंज, डिफॉरेस्टेशन, फ्लड्स, ओवर यूज ऑफ लैंडस्केप एंड ड्राइंग रिवर्स। नाउ कमिंग टू द पर्टिकुलर पीपल दोज वर इंपॉर्टेंट एट द टाइम, और क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। आई एम सेंडिंग द पर्टिकुलर क्वेश्चंस फ्रॉम द पर्टिकुलर चैप्टर, वो लिंक आप ओपन करें, वहां क्वेश्चन भी मिलेगा, आंसर भी मिलेगा। few example question I have taken here. John Marshall, who was John Marshall and what was his role? John Marshall कौन थे? Director General of Archaeological Survey of India. So what he did? Discovery of new civilization. उन्होंने नई civilization की discovery की, that is Indus Valley civilization. Number 2, और क्या किया था उन्होंने? Conservation और preservation किया था सांची स्तूप का. He is also associated with conservation and preservation of Sanchi Stoop. So, what was the contribution of John Marshall? कौन थे वो? Director General of Archaeological Survey of India. And क्या किया उन्होंने? Discovery of new civilization, जो कि क्या कहलाई? Indus Valley civilization. और दूसरा काम क्या किया था? Conservation and preservation of Sanchi Stoop. For these particular two functions, we are going to remember John Marshall. So, एक और question you can know about the seals. What was the use of seals? या seals की importance क्या थी, significance क्या थी? Here we can see about that. जब हमने seal के बारे में पढ़ा, तो ये भी जानना कि seal थी वो क्या कर रही थी? Long distance communication का काम कर रही थी। दूर जब जाते थे तो सामान जो है वो प्रॉपर जा रहा है, वो प्रॉपर सर्टिफाइड है, इसका श्योर एश्योरेंस जो था वो सील से मिलता था। सो इट वाज वर्किंग एज लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। एंड वेयर सील्स आर गोइंग टू बी सेड दैट इट इज टेलिंग अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर। सेंडर क्या भेज रहा है, उसका क्या नाम है, उसकी आइडेंटिटी को वो सील में लिखा जाता था। तो क्या हुआ, ये क्या दो बातें हुई, इसलिए क्या कर रही थी? लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन का वर्क कर रही थी। एंड फ्रॉम सी वी कैन नो मोर अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर। सेंडर की आइडेंटिटी को हम जान पा रहे हैं। सो दिस वाज द क्वेश्चन एंड such type of questions can come in your exam. Next, what were the two main features of Harappan civilization, जो कि हमने कल पढ़ा था और आज भी हम उसको रिवाइज कर रहे हैं कि सिटाडल एंड लोअर टाउन। सिटाडल क्या था? स्मॉलर हायर देन द लोअर टाउन, छोटा था बट ऊंचाई पे था, जैसे हमने बताया था लाइक फोर्ट था। लोअर टाउन सेवरल बिल्डिंग जो थी बनी हुई थी एक प्लेटफॉर्म पर, और उन प्लेटफॉर्म पर बनी हुई बिल्डिंग भी ही
सारी जो एक्टिविटीज थी वो एक्टिवेट हो रही थी। क्या दो फीचर्स हो गए इसके? दो पार्ट कौन से हो गए? सिटाडल एंड लोअर टाउन। सिटाडल कहाँ पे था? ऊंचाई पे था, एंड इट वाज स्मॉलर देन द लोअर टाउन। लोअर टाउन कहाँ था? बहुत सारी बिल्डिंग्स थी, लोअर पार्ट में थी, एंड इट वाज द बेस्ड ऑन द प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म पे बना हुआ था, वही इसकी सारी एक्टिविटीज हो रही थी। देन कमिंग टू द राइटिंग फीचर, ये हड़प्पन टाइम में जो राइटिंग था वो कैसा था, कैसे लोग लिख रहे थे, राइटिंग का क्या क्राइटेरिया था? सो इट वाज नॉट अल्फाबेटिकली नहीं था ये, एंड इसमें 375 टू 400 साइंस, 375 से 400 साइन जो थे वो यूज किए जा रहे थे। सो इट वाज लाइक कि वहां पे अल्फाबेट्स जैसे हमारे यहाँ होते हैं ABCD या जो 12 खड़ी या व्यंजन स्वर, ऐसे कोई भी अल्फाबेट्स वहां पे नहीं थे। सो इट वाज द मेन थिंग ऑफ दैट टाइम कि व्हेन द साइंस वर देयर, साइन थे जो कि 375 टू 400 इतने साइन हुआ करते थे, बट यहाँ पे ऐसा कोई भी अल्फाबेट नहीं था जो राइटिंग के लिए यूज किया था, और राइटिंग का जो पैटर्न था वो राइट टू लेफ्ट था। अब हम क्या करते हैं, हम ये लेफ्ट से राइट में लिख रहे हैं, वहां पे क्या था? राइट टू लेफ्ट। सो इट वाज द मेन फीचर ऑफ द राइटिंग ऑफ दैट टाइम। इट वाज नॉट अल्फाबेटिकली, इट वाज बेस्ड ऑन साइन, एंड साइंस वर मोस्टली 375 to 400, and it was from right to left. राइट से लेफ्ट तक के लिए इसका राइटिंग का मूवमेंट था, and it was going to via the particular way only. So हमने अभी कुछ क्वेश्चन देखे कि जॉन मार्शल कंट्रीब्यूशन क्या था। तो it was डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन को सर्च किया, और क्या किया? सांची का जो आपका स्तूप है उसके कंजर्वेशन कवर, देन सील्स के बारे में पढ़ा हमने, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन कवर करती है, और सेंडर की आइडेंटिटी को बताती है। फिर हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के 2 फीचर्स देखे, सिटाडल एंड लोअर टाउन। सिटाडल जो कि आपका स्मॉलर और हायर है, और लोअर जो है आपका वो बिल्डिंग बनी है, वो प्लेटफॉर्म पे बनी है। राइटिंग में हमने देखा 375 टू 400 साइन जो थे वो थे, ना कि अल्फाबेट थे, और ये राइट टू लेफ्ट में थे। जैसे सी on the blackboard, number 1 industrial civilization, जिसको हम हड़प्पन कहते हैं, 3300 to 1300 BC। ऑब्जेक्ट कौन से मिले? बीड, सील्स, वेट, स्टोन्स एटसेट्रा। 2 पार्ट में कैसे डिवाइड की गई? अर्ली एंड लेट। देन व्हाट दे वर ईटिंग? प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। एंड व्हाट टेक्नोलॉजी दे वर यूजिंग? एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी, टेराकोटा मॉडल्स फ्लोइंग के लिए, ऑक्सन की। देन इरिगेशन वाज रिक्वायर्ड, आर्टिफैक्ट्स रिक्वायर्ड, जो कि ग्रेन को पीसने के लिए, ग्राइंड करने के लिए एक चक्की बनी थी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, देयर वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइट दैट वाज मोहनजोदड़ो। 2 पार्ट कौन से थे? सिटाडल एंड लोअर टाउन। ड्रेनेज सिस्टम वाज वेरी इंपॉर्टेंट। देन कमिंग टू डोमेस्टिक एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर, दे वर हैविंग द वेरी गुड बिल्डिंग्स, एंड द प्लेसेस जो कि प्रॉपर में प्लांट्स भी था, एंड द फर्स्ट एंशिएंट पब्लिक बाथ था आपका ग्रेट बाथ यूरिया, जिसमें लोग जब उनको मिट्टी में दफनाया जाता था तो दे वर पुटिंग द आर्टिफैक्ट्स अकॉर्डिंग टू दैट। एंड प्रीस्ट किंग का एक आइडियोलॉजी थी कि था ऐसा कोई राजा जो लोगों से एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग वर्क करता था, पर कुछ कहते थे कि वहां पे कोई भी राजा था ही नहीं। और एंड सिविलाइजेशन क्यों हुआ था? क्लाइमेट चेंज हुआ, डिफॉरेस्टेशन हुआ था, फ्लड्स आई थी, ओवर यूज हुआ लैंड का, और रिवर जो की नदियां थी वो सूखने लगी। और इसके साथ ही हम एक और जो थिंकर है उनका नाम है कनिंगम जो थे, उन्होंने बुद्धिस्ट स्कॉलर जो आए उनसे जाना हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, और उनसे जान के ही उन्होंने इस बारे में लिखा था। सो हिज नेम वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन द पार्ट ऑफ दिस वन। कि कनिंगम जो थे उनका कंफ्यूजन था कि इंडस वैली कब डेवलप हुआ, क्योंकि उनके सारे डेटा थे दे वर बेस्ड ऑन द observations of the Buddhist monks से observation पे डिपेंड थे। So it was a short glimpse of Indus Valley civilization. I will send you the link in which you will find chapter wise question, and in chapter wise question you will find what sort of questions can come.
high order thinking level questions can come, simple questions, short notes, anything can come in that. So very soon you are going to have your class test also, online test, and the questions will be of 1 mark, 3 mark, 5 mark like that. So you need to prepare for that, and this is the part of the revision. एक बार आपका जो WhatsApp ग्रुप में भेजा था उसको देखें, read the chapter, that is the best way. सबसे अच्छा तरीका है आप चैप्टर को पढ़ें, उसको पढ़ने के बाद you will be able to know about more the chapter. उसमें आपको अच्छे से समझ आएगा. And then see the notes. तो ये आपके इस चैप्टर के main points थे which we have discussed today. That was the revision of chapter 1 of history of class 12. So in tomorrow's class we will see little glimpse of this one and the next chapter also. उस चैप्टर की जो आपका kinship वाला चैप्टर है उसकी हम रिवाइज करेंगे, और रिवाइज में we will come to know about so many important topics. So that's all for the day. Do revise, do read the content, and do see the links whatever I am sending. I will send you the photograph of Mohan Jodhpur great part again, so you will come to recall the things. Thank you so much.